Yes, hello, Ujjwal sir. I'm just introducing you, and I'm going to start now. I will ask you to unmute when you are supposed to go live. So I'm gonna introduce you now. So hello everyone. Welcome to Chandra Academy of Science and Engineering second episode of the webinar Infrastructure and Security, which will be conducted by Mr. Ujjwal Patil. Uh, as during this pandemic situation, the two most required thing which is necessary for all the living beings and we are fighting for it, is that is our safety and security, right? So if normal a human being is thinking about it, so how the industry going on, this is the basic question which is arising in many minds. So to answer such sessions, I'm introducing you to our keynote speaker, Mr. Ujjwal Patil. Some key points about him which I'm gonna tell you. He has a 9.5 years of experience in the field of IT infrastructure and security. During his tenure, he has handled various roles and responsibilities and exposure on multiple IT products and technologies with multiple organizations. He is currently working as a senior associate in security field, which he is responsible for development and implementation of security controls to secure the customer's organization infrastructure. His main objective is to be in the process of learning and growing and enable his technical knowledge and skills to secure a challenging position where he can effectively contribute his skills as a professional, possessing competent technical skills. He has been working with industries like PWCPL as senior associate. He was also a employee of private sector bank Aklida, Cambodia, private sector bank Mandiri, Indonesia, Lupin Limited, Mumbai, Reliance Jio, Mumbai. So he has worked with Wipro Limited. He managed security services as consultant over there. He has worked with CMS Infosystems Limited as an IT infrastructure support, with MB Software Private Limited as a server support engineer L1, with Aditya Birla Financial Services Group. Orient Technologies Private Limited as network support engineer L1. So his trainings and certifications are mentioned as certified on TOGAF version 9.2, training CCNA, MCITP, semantic EPM. He is a B computer engineer from Mumbai University, and he has immense experience. As you can know, the number of companies which are quite famous, he has been part of those industries, not only in India but also outside India. So now, without wasting a time, I would call him Mr. Ujjwal Patil and ask him to enlighten to all the occasions with his knowledge in IT infrastructure and security, and it will help our students who are currently in 10th, 11th and 12th standards to choose a proper career, and those who already want to pursue this career, many questions can be answered during this webinar. I'm being an engineer, electronics and telecommunication engineer, still has interest in the sector, and I'll be listening him as a student. So here I welcome Mr. Ujjwal Patil to you students. Ujjwal sir, please you can share your screen and on your mic, and you can talk to the students. Okay. Hello guys. Thank you, Ved sir, for introducing me. Okay. Just unmute your camera, sir. Hello team. Hi. Hello, Ujjwal sir. Yes. Hello. Is it audible? Yeah, you're audible right now. Okay. Thank you, guys. First, I really thank you that you guys have joined this session, and a special thanks to the case that is conducting. They're conducting such a webinars to introduce student with the current technologies or the views of industries, right, and the scope. So it is very big thing to you. At the very child age,
you are learning what you want to be. So it is very good thing for you all. So I like to thank Mr. Ved and Priya and their staff. They're all doing well. As well as I personally met them also. Right, they have a good insight on everything. They are doing well in their progress and career. So I will wish them all the best. I'm starting here with my intro first. Basically, actually, if I say this question is like an interviewing, okay, if you go to interview, the first difficult question is tell me about yourself. So that kind of situation is for me. Okay, so basically, I'm also a normal guy like you. Okay, I did engineering, obviously, with many obstacles, and completed education, started a job. Job had also some obstacles, right? आते हैं बीच बीच में. So I faced them also, and right now at this position, okay, though I'm going towards a success, I'll share a journey, okay. Still, I can say अभी तक वो प्यास बुझी नहीं है. Okay, so in like that it is. So first I want to tell you that I'm belongs to a normal family, okay. uh, in school days, I was very क्या बोलते हैं उसे, unconfident and not performing well kind of a guy, okay, who was very average in his studies and all. So having fear to talk with buddies, but in case of a friends masti and all, I was like, okay, do masti. But when I come to home and पढ़ाई वाला मेरे जैसे ही पूछा जाता था, so I was like, I was like numb, चुप बैठो यहाँ पे. So सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ ना कुछ करके 10th क्लियर करना है. 10th क्लियर कर दिया. 11th and 12th, now this is very biggest, and you know, I think you guys can complete one proverb to me, or I can say a slogan, a sentence. Behind every successful man or a person, there is one. Can you complete on a chat? Yes, students, you can message in the, yes, they are replying. But before you get married, obviously, woman is mummy only. But I will say failure come first. Okay. बिकॉज फेलियर्स ये होते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलत गए, आपको कहाँ उठना है, उभरना है, राइट. वो आप पीछे 2 कदम पीछे आ जाते हो, वैसा समझ लो. क्योंकि शेर जो भी होता है ना, वो हर वक्त 2 कदम पीछे आता है. उसको पता चलता है कि छलांग लगानी कितनी है उसकी. आपके फिजिक्स के टर्म्स में कहो तो वेलोसिटी कितनी है, उसका मोमेंटम कितना रहेगा, स्पीड वगैरह, टाइमिंग वगैरह, वो सब. which I will not go deep into it. मेरा 12th हो गया अभी. So ऐसा है. So obviously woman will be there and that mother, but along with that failures make a role there. Failures ऐसे रहते हैं कि उस failures में मुझे ऐसा सिखाया. I was like a मराठी medium guy, okay. आता वता कुछ नहीं, गया 12th 11th science में, and what I observed, everything is in English. Oh my god. So there it was like I passed only one subject and 5 failures. And you can obviously guess what subject was that. Marathi. I passed only Marathi and failed in all other. Then how I improved, obviously, I was writing everything. Okay, whatever definition, whatever derivation is there, I used to write. I used to memorize it. 5 बार लिखूं, 10 बार लिखूं, ऐसा सब चलता था. Then it has developed me in such a way I can build a derivation. Okay, मुझे वो फॉर्मूला क्या है वो पता भी चलता था, वो कहाँ से कैसे अप्लाई किया वो भी पता चलता था. And as well as in terms of biology and all, वो तो थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें रहती थी तो समझ के कर लेता था.
So in that sense मेरा 11th हो गया, then 12th में आया. 12th I got good understanding. Okay, even my teacher were impressed that yeah, he is doing well, and he is at least having a recollection of last lecture, that he remembers the last lecture में क्या हुआ था. 11th में तो मुझे पता भी नहीं चलता था, but yes, it was a fact that I know this, but I was unable to explain them that what it was. I know, sir, it will be done like this, but I am unable to get the data from the given statement. You know, आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं फिजिक्स में वगैरह में, वो बुक आती है एंड उसमें लिखे हुए रहते हैं सम्स वगैरह रहते हैं, एक चैप्टर के ऊपर 150 सम का एक ऐसी बुक मिलती है. तो उसमें से गिवन डेटा निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता था 11th में. इन 12th में मैंने उस पर थोड़ा ओवरकम कर लिया एंड पूरा सेट कर दिया. बिफोर कंप्लीशन ऑफ माय आई थिंक 12th का जो भी सेशन है, दिसंबर तक मैंने मतलब ऑलमोस्ट 80% सिलेबस तो कवर कर लिया था. ऑब्वियसली मार्क्स कम आया, दैट आई विल से, ऑब्वियसली आई वोंट डिस्क्लोज, बट यस, इट वाज अ फर्स्ट क्लास इन पीसीएम एंड पीसीबी. सो वैसा करके मैंने 12th वगैरह कर लिया. सो बेसिकली कहना ये है कि भाई, you whatever you will be doing, if you are getting failures, if you are not recollecting anything, you are not able to memorize anything, write it, mug up it, whatever. if you mug up तो करना छोड़ दो, मैं तो पहले कहूंगा, बट आफ्टर मैंने समझो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अभी मग अप कर लो, बट यू नो मग अप करना तब है जब आपको बिल्कुल भी नहीं आता. बट तुम्हें अगर वो चीज खुद से ठीक से करनी है, तुम क्या करो, सामने वाले को सिखाओ. उसमें तुम्हें पता चलेगा, अरे सामने वाला क्या पूछना चाहता है, सामने वाले की जिज्ञासा क्या है, उसमें तुम्हें पता चलेगा. सो यू विल कम टू नो योर लेवल, देन यू विल ट्राई टू प्रिपेयर फॉर इट. एंड इस शेयरिंग में यू विल कम टू नो, ओ यू ऑलरेडी डन इट, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गया. देन फिर ऐसा कर करके आई मतलब overcome on all that situation and completed my 12th, got into the engineering, जो कि एक बड़ा समंदर है. उसमें भी स्टार्ट में आई वाज लाइक कि हाउ टू स्टडी फॉर इंजीनियरिंग. 10th 11th 12th तो ठीक था, बट हियर 6 subjects in 6 months, there it was 6 subjects in 1 year. So it was battling situation. So मैंने वहां पे भी थोड़ी मार खा ली, अरवक खाई, क्योंकि मेरा पढ़ा तो ठीक से जाता था, लिखा नहीं जाता था मेरे से. इनकम्प्लीट रहना, और बाद में कुछ कुछ चीजें जो मैं छोड़ देता था, तो बाद में मैंने उस पर भी ओवरकम किया. देखो, जैसे कि एक सब्जेक्ट है, तो मैं जस्ट अवेयर कर रहा हूँ, मैकेनिक्स करके एक सब्जेक्ट है, आएगा, तुम जो भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो उनको इस सब्जेक्ट का सामना जरूर करना पड़ता है. सो दैट सब्जेक्ट इज लाइक, उसका हाफ ऑफ द पार्ट इज वेरी गुड. आई मीन यू कैन से अ स्टैटिक, एंड मतलब फिजिक्स का जो स्टैटिक है वो, and second part is a dynamic. Now static takes much more time to solve the problems. It don't need more logic, but it will solve all your problem. Okay, thing is that you should put the directions of a forces and its values at its place. No change in that, you will get the answer definitely. But in kinetic, it will take very small time to solve the question, but it will take some more time to clear the things. Once you got the logic, you will solve the problem very easily in kinetic. ये बहुत बड़ा फंडा है उसका. इसीलिए मैंने जब मतलब मुझे भी 2 केटी लगी थी कि मैकेनिक्स में, थर्ड टाइम मैंने बोला नहीं, दिस टाइम आई विल डू फॉर काइनेटिक्स. मैंने काइनेटिक किया, स्टैटिक मुझे ऑलरेडी आता था. काइनेटिक में मैंने सबसे पहले पेपर मिलते ही काइनेटिक में कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो मैंने नोट डाउन किया. Okay, I will do this, do this, do this. And देखा कि okay, these are the kinetics problems, so 5 problems I can easily able to solve, and I solved that. After the paper, I heard the views from people that paper तो यार बहुत भंगार था. I said yeah, it was very tough and all. So I thought फिर तो गया मैं.
But when result came, in whole university, result was like 22%. 22% मैकेनिक्स का रिजल्ट, एंड उन 22 में से मैं एक था जो कि 41 पे पास हुआ. बस आई रियलाइज कि दिस वाज द डेप्थ आई हैव टू गेट. स्टिल आगे फिर भी थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आए. आई हैड वन और टू थ्री वाइडीज इन द माय career, I mean education. It was an education gap. Even company notes your gap. Okay, they takes a declaration from you that what you did in this gaps and all. I will tell you that too. So वो gaps वगैरह आए in final year. Then final year में obviously पढ़ाई करना पड़ता है. 50 above 60 तो आना ही है. above 60 तो भी मैं कम बोल रहा हूँ. But if you set lower limit, you will try for lower only. Think for a higher limit. Solve your paper 100%. जब तुम 190 के लिए लिखोगे तो तुम्हें 60-70 आएगा. You might have heard or seen a message on a WhatsApp that you are studying in 40 GB, doing 4 GB, remembering 4 MB and writing 4 KB, right? So it was like that. So I thought कि नहीं, इसमें वैसा ही करना, but I have to be more careful about this. फिर बी में लास्ट ईयर के सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग थे. उसमें जो भी सब्जेक्ट थे कंप्यूटर फील्ड के लिए काफी रियल लाइफ थे. तो उनमें जिज्ञासा पहले से ही थी मेरी. ओके. और while doing my engineering only, I used to do some small kind of a job. Okay, it was not job but freelancing, you can say. Computer repairing वगैरह वगैरह, assembling, installation of softwares and all. Even one of my good friend was developing one career development center. Okay, he developed well, it ran well. Okay, उसका पूरा setup जो करना था वो हम दोस्तों को ही करना था. Okay, and उनमें से you know already one person. Okay, so he also helped, that is Ovait sir, and as well as me and my one more colleague Lalit. So we tried to set up that all center. उसका network क्या है, उसका landing क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरनेट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, filtering, how it should work and all, how the lectures will get conducted, वैसा सब कुछ. So वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. And before I get a degree, I was having some knowledge with me as well as experience. I was able to speak what I can see in industry or what are the industry needs. I was able to present them. So जबकि मैं फर्स्ट इंटरव्यू में जाऊँ तो ऐसा ना हो जाए कि भाई what was that. And obviously एक बार तो वैसे ही हुआ था, but that was after a degree only. वो भी मैं बताता हूँ आपको. So situation ऐसी थी कि what should I tell वगैरह वगैरह, but मैंने उस पे अच्छा खासा ओवरकम कर लिया, डिग्री हासिल कर ली. एंड डिग्री के बाद फिर जॉब की भागदौड़. आपने पिछले ही कुछ दिनों में हमारे एक कलीग जो अच्छे खासे फ्रेंड है हमारे, विजय सर, उनका वेबिनार सुना रहेगा. तो सिनेरियो ये था, मेरे घर में सबको पता था कि ये ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं, इन सबको जॉब लग गई, एंड उज्ज्वल इज स्टिल देयर एंड ही इज जॉबलेस. ही इज डूइंग छोटा मोटा जॉब एंड गेटिंग सम मनी एंड एंजॉयिंग फॉर हिमसेल्फ. सो अभी इन सबको लगा, मुझे नहीं लगा. सो वो मेरे लिए हैप्पी एंड सैड दोनों वाली सिचुएशन थी. फिर हमारे और एक दो कलीग है जो विजय वगैरह उनके साथ है, उनको भी जॉब लगी थी. तो मैंने कहा पापा डोंट वरी, लग जाएगी. आई स्टार्टेड हंटिंग वगैरह शुरू हुआ. एंड उसके बाद फिर एक लगा जो आपको अभी वेद सर ने कहा कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी. दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक where I worked as a network support engineer, and in that I was at a level 1 support. Okay, so आपके घर में अभी राइट नाउ जो इंटरनेट आ रहा है ना, कि कोई यूज कर रहा होगा टिकोना करके इंटरनेट. ओके,
उसका टेक्निकल सपोर्ट था। तो जब आप फोन करके बात करते हो कि हमारा ये इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप हमें हेल्प करो, या व्हाट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग एंड ऑल ऑल ऐसा सब बकबक वाला। सो ऑल दैट जो भी अब्यूजिंग वगैरह रहता था, वी यूज्ड टू लिसन टू इट. We used to guide customers also. We used to guide the engineer who is going on site. On site means at the customer place to handle these situations. So वो situations वगैरह भी हम लोग देखते थे, and उसमें से experience लेके फिर मैं आगे गया. Then I got into the Wipro जो कि franchisee वाला था. It has given me a project Aditya Birla, and it was one of good assignment for me. अभी आगे मैं आपको एक दिखाऊंगा, एक पिक है वो दिखाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा कि वहाँ पे क्या करना पड़ा था मुझे वो आदित्य बिरला का सेटअप देख के, उसकी एक ब्रांच का, कि जहाँ पे मतलब मेरी सच में कहते हैं कि बैंड बजी थी. सो सो वो सिचुएशंस थी, मैं बताऊंगा जब वो पिक आएगा तभी. फिर आगे वो टेक्निकल सपोर्ट, वो तो डेस्कटॉप लेवल पे था, जबकि मैं मतलब हर एक के डेस्क पे जाके कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर कंपनी में आपके 100-200 मेंबर्स बैठे हुए रहते हैं. यू हैव टू असिस्ट एवरीबॉडी, यू हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, भले वो उनका सॉफ्टवेयर इशू हो, हार्डवेयर इशू हो, नेटवर्क इशू हो, यू हैव टू बी देयर. एंड द सर्विसेज नीडेड एट ऑन टोज. ओके, share market is running on it. Even if you have a delay of 1 or 2 seconds, you have to face more and more loss. One situation where there, I can remember in 2011, there was a major cut, okay, fiber cut at BKC, and it has down 4,000 connections, 4,000 offices बंद पड़े थे. You can imagine. But वहाँ पे जो सिचुएशन थी कि MTNL के इंजीनियर्स वहाँ पे काम कर रहे थे, और जबकि मैं बिरला में था, तो आई वाज लाइक वर्किंग कि आपने वो कभी सैटेलाइट देखा है, डिश रहती है, इट कैप्चर्स द सिग्नल, केबल वाला वगैरह. सो वो सैटकॉम को भी सेट करना था, विच वाज नॉट रेडी. कस्टमर बहुत बैठे हुए थे मेरे पे. ही सेड अगर मुझे 4 घंटा और मिलता था तो मैं 4 करोड़ और कमाता. व्हाट वाज माय आंसर, कैन यू गेस? I said, sir, I'm a very small person. I cannot pay you. Okay, but I'm there to handle the situation. I took a follow up of that things. 2 दिन मैंने देखा MTNL के जो इंजीनियर्स है, आप कहते हो वो तो मजदूर भी कह सकते हो उनको, दोनों भी वहाँ पे काम करते हैं. एक बड़ा 20-30 फीट का गड्ढा, 15 या 20 फीट का रहेगा, उसमें उतर के वो लोग एक एक केबल कनेक्ट कर रहे हैं, 4000 केबल. सो जैसे ही कनेक्ट हुआ, इंटरनेट वगैरह चालू हुआ, एंड इट वाज वर्किंग. आई गॉट एप्रिशिएशन आल्सो. बट आफ्टर दैट एक सिचुएशंस भी वहाँ पे थी कि उनका डीसी जो था वो थोड़ा गड़बड़ाया सा था. इट वाज क्लमजी एंड ऑल. सो आई मेड इट प्रॉपर. देयर आल्सो आई गॉट एन एप्रिशिएशन. आई got to know, okay, this infra is there, how it is connecting, from where the lines are coming, how they're going, how it is going to the user's desk, how they're able to operate, how the software is making requests. This all you can understand in the technical support. So I started my journey from base. Okay, because obviously while doing a degree, I haven't got any placement. So placement ना मिलने के कारण I was not sad, but I said मिल जाएगा. हर किसी के लिए एक नौकरी तो पक्की रहती है, बस ढूंढनी रहती है. So I started my journey. फिर वहां से लेके देन आई गॉट, उसमें एक थोड़ा बड़ा रोल मिल गया फिर मुझे, जहाँ पे मुझे आईटी इंफ्रा सपोर्ट करना था पूरा, जहाँ पे सर्वर्स, नेटवर्क्स, सिक्योरिटी, डेटाबेस, सब कुछ देखना है. डेटाबेस का भले इंटरनल डेटाबेस डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, बट उनके इंफ्रा को मैनेज करना जरूर था. हाउ टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, उनका डीसी वगैरह सब कुछ भी होता है, हाउ टू रन. ये सिचुएशंस काफी रहती है इंफ्रा के फील्ड में, नेटवर्किंग के फील्ड में, सिक्योरिटी के फील्ड में, आज के दुनिया में हर किसी फील्ड में. सो इट शुड नॉट बी लाइक एन अ गवर्नमेंट जॉब
that you did 9 to 5 and you are done. आराम से घर पे आके रोटी चबाई और सो गए, ऐसा नहीं होता. सो ये रहा था तब वहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रा पे मुझे हाथ डालने मिला, हैंड्स ऑन मिले, एंड देयर आई इम्प्रूव माय स्किल मोर एंड मोर. बिकॉज पहले तो मैं डेस्कटॉप पे था, नॉर्मल अपना डेस्कटॉप लैपटॉप जो घर का रहता था, यूजर का रहता था, उस पे था. उसके बाद में बड़े इंफ्रा पे आ गया जहाँ पे सर्वर्स नेटवर्क्स वगैरह मॉनिटर करना है, मुझे मैनेज करना है उनको. उसके बाद फिर वो भी मैंने छोड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली लर्निंग की प्यास बुझती नहीं. Then I came to the Wipro. Means they called me. They had an interview, obviously, and here is the one name. I thought I will lose this Wipro job. They asked me about my drops, yeah, education gaps. Why you had a gaps? I had already cleared my 3 technical round. Okay, but I thought I will miss just due to my gaps, engineering gaps. So they made me clear that you have to provide a declaration for that. I provided declaration कि इस time जो था वो बता दिया. I mean, I like to say you should say truth only. You should not lie. Same I did. I provided declaration. I get into the opportunity, and there I got into the security, infra security, where I have to manage firewalls and antivirus and all. Right now you also have antivirus on your system also, right? So उसका centralized management and all I have to look into it. उसका compliance देखना, उसको manage करना, firewall को देखना, manage करना, उस पर request build करना, 2 organizations के बीच में communication कैसे करवाना है, that I have to look into. So it was a good journey. After that I came to the PwC, that is my current organization, where I'm doing an advisory consultant, okay, a senior associate for security, where we help customer to develop, implement the security protocols and control, so that organization's infrastructure will be secured well. No intruder will come in. So ये रहा था मेरा journey. So I will take you to the what is IT infra and all, why they are talking about it, and why how you can take an interest in it. So I will just show you my slide. Wait a minute. Thanks to Chandra Academy once again, that they are trying to introduce IT infrastructure and security to their student while their education itself. This was my college, engineering college. I studied computer engineering from here. That is MGM College, MGM Mahatma Gandhi Missions College of Engineering and Technology. This is our library, जिसमें कभी कभार तो obviously जा लेते थे, but final year में ज़्यादा गए. So it was good thing. But उससे काफी सीखना भी मिला. और ये यहाँ पे ऐसा रहता था कि बस हम लोग पढ़े रहते थे. पहले तो ऐसे पढ़े रहते थे कि जैसे कुछ इनको काम ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है. देन टीचर्स वगैरह आते थे और वो हमको देखते थे, अरे ये तो यही पढ़े रहते, क्या करेंगे. देन इन द नेक्स्ट ईयर, जैसे कि फाइनल ईयर वगैरह, हम लोग उनके लेक्चर्स में जाके बैठने लगे, एंड दे इम्प्रेस एज वेल एज वी डिड वेल एंड पास्ड. So I will take you to the world of IT infra. You might have seen this
What is it? May I have any guesses from you? Wait a minute. This is data center. देखने में एकदम काफी क्लीन और साफ सुथरा दिख रहा है, राइट? इसके पीछे की दुनिया देखी है आपने कभी? यस, सही कहा आपने, डेटा सेंटर है ये। इसके पीछे की दुनिया देखी है आपने कभी? कैसी रहती है? जस्ट सी दिस। इतने सारे केबल्स रहते हैं इसको, और इनको मैनेज करना, हर केबल कहाँ से आती है, कहाँ पे कनेक्ट होने वाली है, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ इट। इसके लिए लर्निंग रहती है कि आपको डिवाइस अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि कौन सा डिवाइस क्या काम कर रहा है, क्या चीजें करता है वो, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, किस लेवल पे वो काम करता है, ये सब। अभी ये तो कहा देखा आपने कि ये डेटा सेंटर है, राइट? आपके घर का कैसा रहता है? यू सी बेसिक सेटअप है ये। आपके घर का मोबाइल, आपके घर का लैपटॉप, आपका वाईफाई, और सामने वाले जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो या ऐप एक्सेस कर रहे हो, उनके सर्वर्स, राइट? थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये ऐसा दिखता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखोगे तो ये ऐसा ही रहेगा। बहुत ही यू कैन से स्टार्ट में कहोगे तो इट इज वेरी वेग टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर फ्लोइंग इन इट। एक डेटा दूसरे जगह पे कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। आप यहाँ पे नीचे यूजर्स देख रहे हो, दे आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड डूइंग देयर वर्क ऑन अ लैपटॉप, मोबाइल, राइट? हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग आउटसाइड, ऊपर इंटरनेट है, ड्यू टू दैट दे आर कम्युनिकेटिंग आउटसाइड। बट क्या यहाँ पे फिल्टरिंग हो रहा है कुछ? whether it is inbuilt with the security? Yes, it is. वहां पे एक फायरवॉल करके है जो आपके घर के दरवाजे की तरह काम करता है। आपने आपके घर के दरवाजे पे देखा रहेगा कि आप उन्हीं को अलाउ करते हो जो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जिनको आप जानते हो। सेम यही काम होगा। आपको उस डिवाइस को बताना पड़ता है कि आपके लिए ट्रस्टेड कौन है और कौन नहीं, या आप डिवाइस को बताते रहो। यू कैन से आप खुद के नॉलेज से उसका इंटेलिजेंट बढ़ा रहे हो। यस, यू आर डूइंग द सेम। ऑब्वियसली इंसान ने डिवाइस को बनाया, तो यू आर मेकिंग इट मोर इंटेलिजेंट कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं। अगर कुछ लाल शर्ट पहन के आ रहा है तो वेदर उसको अलो करना है या नहीं अलो करना है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। विल सी कि व्हाट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के आपने झलक देखी, वो ऐसी देखी कि वो पिक्स थे। Obviously here also pics will be there, but what are its components? It will show you the components क्या है। Now first मैं ask you कि आपके घर का इंफ्रा क्या है? Can you just type here? आपके घर का डिजिटल इंफ्रा है? सिंपली मैं बताता हूँ, आपका लैपटॉप या मोबाइल रहेगा, आपके घर का वाईफाई रहेगा, या तो इंटरनेट से आने वाली केबल रहेगी, एंड यस, गुड सत्यम, मोबाइल वाईफाई, वाईफाई एंड मोबाइल नेटवर्क, करेक्ट। अभी क्या आपने इस पे गौर किया है ये कहाँ पे कैसे कनेक्ट हो रहा है वगैरह एंड ऑल, कि इसमें क्या इन्वॉल्व है? हैव यू सी? राइट, वाईफाई एंड राइट, विल गो अहेड एंड क्या है वो देखते हैं कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते क्या है, क्या ऐसा चीज है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। ओके, so here is its component. First component, hardware, which you already know and handling very well at very low age, I can say, very younger age.
ये तो ऑब्वियसली आज के दुनिया की बदौलत है कि आपको मोबाइल डिवाइसेस अर्ली हैंड में मिले काफी जल्दी. सो यू गाइस आर गोइंग वेरी वेल देन. हम लोग के लिए तो मतलब कुछ तो डिग्री का सेकंड ईयर ही था एंड फर्स्ट ईयर के टाइम मोबाइल्स वगैरह आए हुए हैं एंड उसके पहले ही शायद आए थे एंड मेरे पास नहीं था ऐसा. कलीग्स वगैरह कॉलेज वगैरह के फ्रेंड्स वगैरह उनके मोबाइल पे वगैरह देखता था, अरे क्या है कैसा है. सो आई वाज वेरी अमेज्ड कि भाई क्या है ये मोबाइल, बंदा मोबाइल यूज कर रहा है. तो ऐसा अमेज होता था मैं एंड फिर तभी ऑब्वियसली थोड़े चाइल्डिश तो अपन लोग हर वक्त रहते हैं. सो आई यूज्ड टू प्ले अ गेम फ्रॉम देयर. देन सेकेंड ईयर आया तो थोड़ी पता है ना मोबाइल आजकल की जरूरत तो बन गई है. तो कभी इतनी भी नहीं थी लेकिन बन गई तो तभी मोबाइल ले लिया. सो इट वाज वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल मोबाइल बट इट वाज वेरी गुड मॉडल ऑफ नोकिया. इट वाज बटरफ्लाई, दैट इज नोकिया 2300. उसका एफएम की क्वालिटी काफी अच्छी थी. इफ यू इवन इफ यू keep it on a loudspeaker in a bedroom, you will listen it to the kitchen. Okay, very well without a noise price. So ऐसा था. So that is the one hardware. So हार्डवेयर में आपका कुछ भी हो सकता है. कंप्यूटर रहता है. ओके, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं. पार्ट्स में अभी देखो आपके सामने जो पार्ट्स मैंने रखे हैं वो कुछ ऐसे है कि उसमें लैंड कार्ड दिखाई देगा आपको, एक कार्ड है, मेमोरी चिप्स है, मॉनिटर है, एसएमपीएस है ना. पावर मॉड्यूल ऑब्वियसली नेसेसरी है. हर चीज के लिए बिजली नेसेसरी है. इफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर, नॉट दैट डिजिटल वर्ल्ड कांट डू एनीथिंग. So, but still, to beat that situation, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ने यूपीएस इंट्रोड्यूस किए हुए हैं. सो वो ऐसे पावर सप्लाईज है जो आपने पीछे अभी डेटा सेंटर देखा, वहां पे बहुत बड़े यूपीएस, वहां मतलब बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के यूपीएस रहते हैं which keeps providing power supply to the infrastructure. जो भी सर्वर रहे, राउटर रहे, फायरवॉल रहे, एनी डिवाइस और अप्लायंस यू कैन से वहां पे कनेक्टेड रहते हैं. उसकी हर एक उनके पीछे ना दो कनेक्टर रहते हैं. एक कनेक्टर रहता है वो एसी को, जैसे अपने घर पे रॉ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्टेड. दूसरा रहता है यूपीएस को. अगर फेल भी हो जाए ना, एक ब्लेड फेल होगा दूसरा नहीं होगा. हियर ये सिक्योरिटी का वन पिलर है, अवेलेबिलिटी. आपने कभी देखा है कि गूगल चलना बंद हो गया? नेवर, कभी नहीं होता. यू डिलीटेड वन मेल फ्रॉम वन एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट मेल, कभी नहीं होता ऐसा. यू विल गेट एवरीथिंग. उसके लिए ऑप्शंस रहते हैं, यू हैव टू फाइंड इट. विल गो टू दैट लेटर ऑन. सो हार्डवेयर रहते हैं. सो हार्डवेयर कैन बी एनीथिंग व्हिच लाइक आई सेड, लैंड कार्ड, फायरवॉल, राउटर, डिवाइस वगैरह जो भी लो लेवल. इवन द इलेक्ट्रिसिटी केबल आल्सो इज एन हार्डवेयर. आफ्टर हार्डवेयर और बड़ा कंपोनेंट क्या रहता है? टेक्नोलॉजी इन दो चीजों पे चलती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर पे चलने वाले सॉफ्टवेयर, ये आपके हार्डवेयर पे चलने वाले सॉफ्टवेयर है ना, जाने पहचाने हैं आपको, जो आप आपके मोबाइल में अभी यूज कर रहे हो. यू नेवर नो ये कनेक्टेड कैसे है, क्या है इनके पीछे. इनके पीछे वही दुनिया है जो आपने अभी पीछे देखी. बहुत बड़ा जायंट रहता है, बड़ा नेटवर्क रहता है, कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, और वो भी 24/7 सॉफ्टवेयर. उसके बाद आता है एक बड़ा कंपोनेंट जो इनको कनेक्ट करके रखता है, एंड दैट इज नेटवर्किंग. ऑलरेडी लर्न मेनी थिंग्स इन लास्ट वेबिनार. नेटवर्किंग ये है जो सबको कनेक्ट करके रखता है, राइट. आपके फ्रेंड्स में भी एक ऐसा नेटवर्क बंदा रहेगा, फ्रेंड्स के बॉन्ड कनेक्ट करता है, नॉट ए नेटवर्क केबल एंड ऑल. नेटवर्क केबल वाला तो ऑब्वियसली करेगा वो बात है, बट यू नो एक ऐसा बंदा रहता है ग्रुप में हर वक्त कि जिसका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहता है सभी फ्रेंड्स के साथ, एंड वो सभी बंदों को इसमें बांध के रखता है. ऑब्वियसली उनमें से मैं भी एक हूँ. जबकि उस बारे में एक बताना चाहता हूँ कि
हम लोग 10th के बाद 10th के जो कलीग्स है, जो भी फ्रेंड्स है, उनको हम लोग मिले नहीं थे। उनके लिए रीयूनियन करना था। रीयूनियन था ऐसा कि कोई किसी के कांटेक्ट नहीं, बट आई वाज द पर्सन कि जिसके कांटेक्ट में 20% 65 की बैच थी बॉयज एंड गर्ल्स की, 20 तो मेरे पास थे। अभी 20 को चालू किया तो करते करते वी रीच 35। चलो 35 तो होंगे। सो ऐसा एक बॉन्डिंग आपके बीच में ही किसी एक का रहेगा, and that guy will be one of the luckiest as well as he will be having one of fame also. ठीक है, वो कंटिन्यू करे। सो नेटवर्क इज वन ऑफ द गुड थिंग जो पीपल्स को कनेक्ट करके रखता है। आप आपके घर पे जब बैठते हो, आप आपका सपोज देखो ना, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि कैसे कनेक्ट होते हो आप गूगल तक कैसे पहुंचते हो। आप आपके हार्डवेयर पे सपोज मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आपने आपका कंप्यूटर ब्राउजर ओपन किया, वहां पे आपने टाइप किया google.com। नाउ इसके पीछे क्या हो रहा होगा, क्या मैकेनिज्म होगा कि ये नाम आप डाल रहे हो और वो पढ़ ले रहा है। उसके पीछे भी थोड़ा साइंस है। टेक्निकल बात ऐसी है, वो नाम को पढ़ता है yahoo.com, उसको एक न्यूमरिक में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है और वहां से लेके आपके डिवाइस से लेके वो आपके सर्वर तक लेके जाता है। मतलब गूगल के सर्वर है ना, google.com डाला आपने तो गूगल के सर्वर तक लेके जाएगा। नाउ गूगल के सर्वर तक लेके जाने के लिए भी यस, शाम इट इज कनेक्ट डीएनएस। डीएनएस इज अ सर्विस which converts your, I mean, resolves your name to IP and IP to name. So it has a both forward lookup zone and reverse lookup zone. Good that you know this. So अभी ये नाम तो लिया, उसने डीएनएस से क्वेरी तो कर ली गूगल.com क्या है। गूगल से आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि सपोज एग्जांपल ले लो आपका हैथवे है, हैथवे जान लेता है कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट की है google.com तक जाने की, बट उसकी तरफ रास्ता कैसे मिलेगा। यहाँ पे रोल आता है नेटवर्क इंजीनियर्स का एंड सर्वर इंजीनियर्स का। वो आपके लिए पाथ ऐसा सेट करके हुए रहते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में से आप कहीं से भी रिक्वेस्ट करो, आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर तक सटीक पहुंचे। बट वो सर्वर भी एक नहीं रहते, अनेक रहते हैं। वाई? बिकॉज अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। नाउ गूगल में हैव 100 सर्वर्स, राइट? Whichever server is available or free to serve your request will capture that, and it will say, okay, I'm Google. Google एक acknowledgement भेज देगा, yes, your request has been received. Let download our page at your endpoint. Endpoint means your hardware जो भी हो, desktop, laptop and mobile. और वो रिटर्न आके आपके मोबाइल पे पेज लोड हो जाता है। अभी वो पेज भी कहाँ पे था, राइट? वो तो किसी डिवाइस पे रहेगा, सर्वर पे रहेगा, है ना? तो ये हार्ड डिस्क रहेगी, उस पे रहेगा, जिसपे किसी एक वेब डेवलपर में कोड करके रखा हुआ रहेगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है कि वो पेज जो है वेब डिजाइनर कोड करके रखता है, एंड उस जो भी स्टोरेज रहेगा उस सर्वर पे के स्टोरेज पे लोड करके रखता है। उसको वो मिल जाएगा, वहां से वो पिक कर लेगा और आपके लैपटॉप या मोबाइल तक दे देगा। अभी यहाँ पे आती है दो बातें, एक बताता हूँ ताकि आपको आपका इंटरनेट प्रोवाइडर भी रहेगा, और आप कभी अगर उसके पास जाओगे यार और बोलोगे तुमने तो कहा था 5 GB डाउनलोड होगा, ऊपर हुआ 5 GB कैसे नहीं मिल रहा मुझे एंड ऑल। सो ये ऐसा रहता है, इट काउंट्स बोथ। आपके जाने की रिक्वेस्ट भी एक डेटा है, आपके आने की रिक्वेस्ट भी एक डेटा है। ओके, सो उसमें ऐसा है कि वो दोनों काउंट करेगा। आपने 30 KB रिक्वेस्ट किया है, 50 MB डाउनलोड किया, इट विल कैलकुलेट बोथ, टोटल होगी उनकी, तो आपका आईएसपी वही नोट करेगा। सो यहाँ पे आप आपके स्टैटिस्टिक्स में जाके चेक कर पाओगे कि आपने कितना अपलोड किया, कितना डाउनलोड किया। If your ISP provider gives you a portal to show your user statistic, okay, ठीक है।
तो ये रहा। अभी इसके आपने देखा कि नेटवर्किंग की वजह से आपकी रिक्वेस्ट एक हार्डवेयर के ऊपर के सॉफ्टवेयर से लेके नेटवर्क से एक सर्वर तक जो कि रिमोट एंड पे बैठा हुआ है उस पे कैसी गई, राइट, हाउ इट हैज एक्नॉलेज्ड, ये आपने देखा। अभी इसके बाद और एक आता है जो मैंने कहा कि भाई डेटा मैनेजमेंट, राइट, लाइक आई सेड कि वेब डेवलपर एंड जो भी बंदा रहेगा, कोडर है ना, प्रोग्रामर वगैरह, उसने तो कोड करके रखा हुआ रहेगा और वो तो एक वेब पेज रहेगा, वेब पेज किसी सर्वर पे रहेगा। अभी उस सर्वर को मैनेज भी तो करना है, उसका डेटा भी तो मैनेज करना है। वो आपके घर पे हार्ड डिस्क है, ऑब्वियसली इट विल बी देयर, हाउ यू मैनेज योर डेटा, मे आई नो जस्ट वन। How you manage your data on your hard drive? Do you have any kind of a classification there? Okay, I will tell you. So एक रहता है एप्लीकेशन डेटा, दूसरा रहता है यूजर डेटा। ओके, एप्लीकेशन डेटा में वो डेटा रहता है जो एप्लीकेशन उसके फंक्शनैलिटी के लिए यूज करती है। यूजर डेटा वो रहता है जो यूजर ने खुद किया हो। अभी आप देखो ना, आप अभी जूम यूज कर रहे हो, है ना, जूम आप आपके मोबाइल पे यूज कर रहे हो, मोबाइल में करेक्ट कुकीज, बट ये कुकीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसको कभी भी मिस होने मत देना। और ये किसी गलत हाथों में पड़ गई तो ही कैन इजीली हैक योर सेशन। यस, इट कैन इजीली हैक योर सेशन। और इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसलिए हम हर वक्त अपने कंप्यूटर्स को पासवर्ड रखते हैं, राइट, कैशे मेमोरी। सो आपने आपका जो जूम सॉफ्टवेयर है इसमें एक ऐप डेटा रहेगा, एक यूजर डेटा रहेगा। आप जब एप्लीकेशन के स्टोरेज में जाओगे यू विल फाइंड दिस थिंग्स कि आपका ऐप डेटा कौन सा है और यूजर डेटा कौन सा है। यू आर इजीली एबल टू क्लीन योर यूजर डेटा बिकॉज आप उसमें वो रहता है जो आपने खुद कस्टमाइज करके रखा है या आपने खुद डाउनलोड करके रखा हुआ है। दैट मीन्स योर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड योर captured data, downloaded data, whatever it is. Then whatever will be the executable files रहती है, ऐप रहती है, वो आपकी ऐप डेटा में रहेगी। उसको आप फिर से क्लिक करो, वो क्लिक करने के बाद it will again reinstall, it will reinstall and it will give you a login to that particular application. So वहाँ पे एक डेटा मैनेजमेंट है कि क्या करने पे, किस डेटा पे कैसे कंट्रोल जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब उसमें प्रोटोकॉल से डिफाइंड रहता है। ओके, सॉरी, ओके। सो यहाँ पे आपका डेटा क्लासिफिकेशन हो गया, बट ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे थोड़ा और भी रहता है इसमें, जैसे कि आपका वेब डेटा, ऐप डेटा, यूजर डेटा। अभी ये तो है ही, एप्लीकेशन में भी और और बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें डेटाबेसेस रहते हैं। अभी जैसे कि आपने गूगल पे गए और आपको साइन अप करना है, अभी साइन अप के दौरान आप देखोगे कि इट इज आस्किंग यू मेनी डिटेल्स, यू फिल योर नेम, योर यूजर डिटेल, योर डिजायर्ड आईपी एड्रेस, सॉरी, डिजायर्ड यूजर नेम which will be unique in on globe, right? वो देन आपका पासवर्ड वगैरह वगैरह वैल्यू जो भी डिटेल्स हो, इट इज कैप्चरिंग समवेयर इन द डेटाबेस। अभी इस डेटाबेस को भी मैनेज करना पड़ेगा, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस रहेंगे और डेटाबेस मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि डेटाबेस है, सॉरी, ओरेकल है, IBM DB2 है, SQL है, MySQL है। ऐसे सारे एप्लीकेशंस जो है वो डेटा को मैनेज करने में काम आते हैं। ओके, देन here it comes services, why and where। अभी इस सर्विसेज में क्या चाहिए? अभी if I say give an example,
ओके ओके, ये क्या है? SaaS, PaaS, IaaS? So it is basically software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. यहाँ पे ये है, अभी आपके पास इतना सारा है, ये 4 बड़े कंपोनेंट हैं। इन 4 को आप सिर्फ ऐसे ही यूज नहीं करोगे, इनसे कुछ चीजें भी रहेगी जो आपको सर्विस के तौर पे किसी और कस्टमर को दोगे, राइट? उनके लिए ये काम करेगी। तो जैसे कि देखो, अभी मैं कहूँगा आपको, चलो एक वेबसाइट है, उसको लॉन्च करना है। अभी आपके पास कुछ भी इंफ्रा नहीं है, ना आपके पास कोई डेटा सेंटर है, ना आपके पास कोई सर्वर है, ना डेस्कटॉप है, ना नथिंग एनीथिंग, पर वो आपको लॉन्च करना है एंड इट शुड बी वाइडली अवेलेबल फॉर ऑल, मतलब वर्ल्ड वाइड रहनी चाहिए। तो आपको आपका जो ये पूरा इंफ्रा है, क्लाउड रहता है। यू माइट हैव हर्ड a service or a vendor's name like AWS, Azure, Amazon के, है ना? इनका है ना बहुत बड़ा क्लाउड है, गूगल। तो ये क्या करता है, अजूर, AWS, Amazon, गूगल, ये बोलते हैं भाई ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो वेब पेज है वो हमारे क्लाउड पे डाल दो और बस आप क्लिक करो, आपको सेट मिल जाएगी। सो इट इज गिविंग यू सर्विस टू होस्ट योर वेबसाइट। आपको सिर्फ वहां पे जाना है, उनके क्लाउड पे साइन इन करना है, कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह रहेगा उनका, तो सब्सक्रिप्शन लेना है, बस दे विल गिव यू स्पेस कि जितना भी आपने सब्सक्राइब किया रहेगा। जैसे कि देखो, AWS 5 GB तो ये दे देता है, आपका 1 ईयर के लिए मिल जाएगा। ओके, इवन इफ यू हैव अ फ्री टियर लाइसेंस। Hello, Ujjwal sir. Hello, Ujjwal sir. Participants, please have patience for a minute. We saw data management and we were on the services कि क्या सर्विस दोगे आप एग्जैक्टली exactly? इतना इंफ्रा पड़ा है आपके पास एंड वो सब है, तो क्यों ना ये यूज किया जाए और किसी पर्पस के लिए, तो आप सर्विस देना स्टार्ट करोगे, राइट? तो आपने वेबसाइट होस्ट करने बोला था और उन्होंने क्या किया कि आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है, आपको जो स्पेस दिया है, उस पर आपका वेब पेज डाल दिया और वहां पे एक पॉइंटर लगा दिया कि कोई भी अगर, जैसे कि आप देखोगे वेबसाइट के लिए ना फाइल रहती है index.html, उस फाइल को पाथ सेट कर दिया। अभी उस फाइल को पाथ सेट करने के बाद उसकी जो एक लिंक जनरेट होती है, वो लिंक आपको दे दी। आपने कहा ये लिंक बहुत बड़ी है, ये लिंक मुझे छोटी करके चाहिए। तो आपने कभी देखा रहेगा कि गूगल फॉर्म की भी जो URL वगैरह रहती है, मतलब लिंक रहती है, वो ऐसे छोटी होके आती है, शॉर्टन बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो रहती है, वो मिल जाती है, फिर आप उसको वर्ल्ड वाइड पब्लिश कर दो। जैसे कि सपोज अभी केस है, केस का साइट मैंने बनाया और उसको अपलोड कर दिया, और केस की वेबसाइट case.in ये पूरे वर्ल्ड में पब्लिश हो गई। अभी ये सिर्फ पब्लिश ही ऐसी नहीं हुई कि वहां पे अपलोड करने के बाद, जब ये रिक्वेस्ट वहां पे बनेगी, तो जैसे कि सत्यम ने कहा कि DNS, ये DNS ऐसा काम करेगा कि ये सब जगह रेप्लिकेट कर देगा। इसकी वजह से पता चल जाएगा कि भाई मेरी जो वेबसाइट है सबको मालूम है कि ये है,
So अभी सबको पता चल गया, everybody can log in case.in and everybody can enjoy on it. They can say they can see their schedule, they can contact, they can check their about us and all. Now the next thing will come. अभी इतना सब तो है, but कुछ कमी है. Do you think something is there which need extremely needed? Can somebody type there? Just one guess I need. Correct, Madhura? That is security. Security will hold everything. Security ऐसे ना पूरे कन में है कहो तो. जैसे कि हार्डवेयर, आपके घर का डेस्कटॉप देख लो, उसमें अगर सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी खेल लेगा घर पे. आपके बाजू वाला आएगा, आपके कंप्यूटर पे गेम खेल लेगा, या तो फिर वो आपके पर्सनल फाइल्स को छान लेगा कि क्या है क्या नहीं है. नाउ यू आर डाउनलोडेड ऑल आईटी सपोज जो भी है, इनकम टैक्स डिटेल्स वगैरह है, उसको यही मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा. एंड उसके बाद ये तो रही आपके डेस्कटॉप लैपटॉप वाली. चलो वो भी छोड़ो, आपके घर का वाईफाई, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, WPA नहीं है, इजीली ब्रेक कर देगा कोई. उसका जो कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड नहीं है, इजीली ब्रेक करेगा. आप घर पे बैठे फ्लिपकार्ट पे आपका जो गुड्स है वो खरीद रहे हो, और सामने वाले को आपके बैंकिंग डिटेल्स मिल रहे हैं आपके नेटवर्क फ्लो के कारण. सो हियर सिक्योरिटी विल प्ले द रोल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर. अभी जैसे कि मैंने कहा कि नेटवर्क पे डेटा फ्लो हो रहा है एंड वहां पे आपकी सिक्योरिटी नीडेड है वाईफाई पे, तो सॉफ्टवेयर पे भी नीडेड है. सॉफ्टवेयर जो आपके आईडी पासवर्ड को कैप्चर कर रहा है, कुकीज वगैरह बना रहा है, उसको भी किसी इंक्रिप्टेड वे में रखे और भेजे नेटवर्क पे, राइट. सो दैट इज नीडेड. सो आपके जो वेब डेवलपर प्रोग्रामर रहेंगे वो उस पर काम करेंगे. एंड देन कम्स टू द नेटवर्किंग. अभी इतना सब यहाँ पे भी एनक्रिप्शन हुआ. नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी कैन बी इनबिल्ट इनटू द नेटवर्किंग. नेटवर्क पे भी ऐसे डिवाइसेस है जो एक जगह से, मतलब एक डिवाइस से डेटा निकला दूसरे डिवाइस में जाएगा, लेकिन दूसरे डिवाइस में जाते वक्त भी वो एनक्रिप्टेड जाएगा, एंड ये अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में ही सेट रहेगी. लाइकवाइज इजीली एक एग्जांपल लेते हैं. आप घर पे हो, आपके लिए एक कॉल आई, एक बंदा आया जिसने नॉक किया, बोलता है बेटा जल्दी चलो, तुम्हारे पापा को हमने एडमिट कर दिया है और तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे मम्मी ने बोला है. क्या करोगे तुम? चले जाओगे झट से या किसी को फोन वगैरह करोगे? यस, क्रिप्टोग्राफी. आप एक कोड रखोगे, एक एनक्रिप्टेड लैंग्वेज रहेगी आपकी, या तो कोड असाइन करोगे. तो आप उस बंदे को पूछना चाहिए कि भाई कोड क्या है. चलो कोड था आपका येलो. अगर बंदा मम्मी ने आपको बोल के रखा है कि कोई बोलेगा येलो, इसी टोन में अगर बोलेगा तो ठीक है. तो डेफिनेटली तभी आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो. बट फिर भी ऑल अदर चेक्स शुड बी नेसेसरी. और जैसे कि मैं आपको ये सिर्फ डेस्कटॉप लैपटॉप के बारे में बोल रहा हूँ, आपके मोबाइल डिवाइस की भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आप जो भी मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके एंजॉय करते हो, टिकटॉक हो या भले कोई हो, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि ज्यादातर जबान पे आ जाता है. ओके. सो इस सॉफ्टवेयर से इनकी सिक्योरिटी, इनसे कुछ भी ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है कि जहाँ पे आपकी डेटा लीक हो रही है. सो यू कीप योर डिवाइसेस एनक्रिप्टेड एज वेल एज. अगर चोरी भी हो जाए आपका मोबाइल डिवाइस, तो एनक्रिप्टेड रहेगा. ही कैन नॉट बी एबल टू डिक्रिप्ट एज वेल एज ही कैन नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू हिज डिवाइस. बिफोर दैट ही विल आस्क यू अ कोड और डिवाइस विल आस्क यू अ कोड. सो ये रही सिक्योरिटी. देन फिर नेटवर्किंग के बाद आती है डेटा की सिक्योरिटी. डेटा के ऊपर भी डेटाबेस सिक्योरिटी रहती है. डेटाबेस की भी खुद की एक फायरवॉल रहती है जैसे नेटवर्क की रहती है. तो यहाँ पे हर चीजों में सिक्योरिटी है. सर्विसेज उसमें भी सिक्योरिटी है. क्लाउड पे जाओगे, क्लाउड में भी आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड रहेगी. सिक्योरिटी इज एवरीवेयर. हम अभी मेरे करंट प्रोफाइल के हिसाब से मैं जो काम कर रहा हूँ वहाँ पे ऐसा है, हम लोग
हर डिवाइस का आने वाला जाने वाला जो कम्युनिकेशन रहता है उसको रीड करते रहते हैं, उनके लॉग्स चेक करते रहते हैं, उनमें एनोमलीज ढूंढना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये पर्टिकुलर यूजर जो है इसका 17 बार क्यों लॉग इन लॉग आउट ये फेल हो रहा है, कौन है जो ऐसा इसके आईडी पासवर्ड को क्रैक करना चाहता है, कौन है वो यूजर मशीन, फाइंड आउट। हमारे पीछे दुनिया लग जाती है और हम लोग को भी फिर उस पर जूझना पड़ता है। सो ऐसा रहता है। सो सिक्योरिटी इज एवरीवेयर। तो ऐसा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कि जिसमें क्या क्या कंपोनेंट है। तो ये जो 6 कंपोनेंट है आपके लिए, मतलब आपके लिए क्या, पूरे आईटी सिक्योरिटीज के लिए, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए नेसेसरी है। आप घर रहो बाहर रहो, यू आर देयर विद इट। सो बाद में मैं बात करूंगा कि इसमें अगर किसी को करियर करना है तो उसके लिए क्या बात है। अभी मैंने करीबन बहुत सारे जो स्ट्रीम्स है उनके नाम लिए। ओके, वो नाम ऐसे है कि जिनको मैंने अभी बातों बातों में छेड़ लिया, वो सब यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, जहाँ पे मैंने अभी बात की कि हाँ मैं हर डिवाइस के लॉग्स जो रहते हैं उनको रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ वगैरह, वो सब उसमें भी आता है। ओके, तो इट इज नॉट कि सिर्फ लॉग्स वगैरह, बट बहुत सारी चीजें जो कॉम्प्लायंस एंड लॉ भी रहता है कि भाई आईटी का लॉ अगर ये बोलता है इसमें इथिक्स ये संभालने हैं, ये प्रोटोकॉल्स है, ये आपको करने ही है, तो यू शुड हैव टू फॉलो इट। एंड उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस क्या रहेगी, उसके लिए प्रोडक्ट्स कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, ये सब आपको इसमें पता चलेगा। देन नेटवर्क एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको वेबसाइट का कि ये ऐसे वेब होस्ट की जाती है, ऐसे एक्सेस होती है, उसके लिए क्या करना है, वो सब आपको क्लाउड में मिलेगा कि क्लाउड को कैसे मैनेज करना है। आपके पास तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको सब कुछ चाहिए, तो क्लाउड आपको ये सब सर्विसेज देगा, सो यू कैन गो फॉर इट। देन आता है हार्डवेयर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हार्डवेयर आपको तो पता ही है, मैंने हार्डवेयर का कह दिया कि हार्डवेयर ये सब है। जो आपका डेस्कटॉप लैपटॉप भी रहेगा वो आपका हार्डवेयर है, कंपनी का जो नेटवर्क राउटर फायरवॉल वगैरह वो भी रहेगा, वो भी एक हार्डवेयर है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, everything is very important, but still it's up to you that what you have to decide. Okay, then IT management and strategy, यहाँ पे थोड़ी लिखा फली वाला काम रहता है कि ये लोग है ना ऐसे लॉ वगैरह बनाते हैं कि भाई ये चीज ऐसी है, ऐसी ही चाहिए, उसके लिए सब लाइव, फिर उसके में कि कोई डेटा रहेगा या कुछ भी रहेगा उसके लिए क्या फ्लो रहेगा, एक कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आजकल इसमें भी काफी सारा स्कोप है एंड यंग पीपल इसमें ही जा रहे हैं, as well as the cloud. Even right now also I am pursuing AWS cloud training to be a solution architect for that. I work for an enterprise architecture, network security architecture. Okay, जहाँ पे कस्टमर के जो नेटवर्क इंफ्रा है उसको पूरा लर्न करो, उसमें क्या कमियां है ढूंढो, उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं वो ढूंढो, उसके लिए कैसे डिवाइसेस लगेंगे, कैसे सेट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन कि ताकि आपका डेटा सिक्योर्ड रहेगा, वो देखो, उसके ऊपर सजेशंस दो, एडवाइजरी बनाओ, रिपोर्ट दो, ऐसे सब काम रहते हैं। ओके, देन फिर स्टोरेज, आपके पास तो स्टोरेज के बारे में ऑलरेडी पता है आपको, आप यूएसबी से लेके हार्ड ड्राइव तक चले जाओ, तो भले आपके डेस्कटॉप का रहे या नेटवर्क ड्राइव रहे। वेब एंड मोबाइल, यू आर वेल वर्स्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे रहता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको स्कोप बनाना है, जैसे कि पाइथन रही, वीबी रही, जो भी है। ओके, ये सभी लैंग्वेजेस का भी सर्टिफिकेशन वगैरह रहता है, आप उसमें कर सकते हो। प्लस एक और रहता है जहाँ पे डेटा वगैरह रहेगा, वहाँ पे डीबी वगैरह का भी रहता है, सो डेटाबेस भी आप कर सकते हो।
ओके, डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका डेवलपमेंट, कौन कैसा क्या डेटा है ना, आपने गूगल का अकाउंट बनाते वक्त एक फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के सब डिटेल्स कहाँ पे जाने चाहिए? सो हाउ यू विल मैनेज दैट? उसका एक डेटाबेस बनेगा, गूगल के पास कितना सारा डेटा रहेगा। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना रहेगा, ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके 4.75 मिलियन बिलियन का डेटा सिर्फ 75,000 में ये गया, बिक गया। क्यों गया रहेगा? और वो भी डार्क वेब पे। अभी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिख रहेंगे, एक तो ऑर्गेनाइजेशन लिख रहेगी या तो डेटा लिख रहेगी, जिसकी वजह से इतना सारा डेटा गया, या तो पर्पसली भी किया रहेगा। somebody do it purposely, somebody unknowingly, कोई कोई हैक हो जाता है, राइट? सो ऐसी चीजें हैं, सो यू कैन गो इनटू इट। एंड देन ट्रेनिंग वो तो आप जब ये सब कर लोगे, आप किसी एक में मास्टर रहोगे तो ट्रेनिंग वगैरह तो कर ही लोगे। सो दिस इज बेसिकली अ करियर पाथ फॉर वन IT infra guy. सो होप आई थिंक टाइम भी काफी हो चुका है। So I like to thank you all guys and provide your best wishes for your learning along with the case. Okay, केस ने जो ये सेशन रखे हैं, जो भी हर एक फील्ड से रिलेटेड बंदों से आपसे बातचीत करवाएंगे एंड ऑल, इट इज वेरी गुड थिंग। I would suggest them along with the IT and technology, they should go in other fields like suppose जैसे भी मेडिकल वाला हो या कॉमर्स वाला हो या होटल मैनेजमेंट हो, मास मीडिया हो, राइट? डिपेंड ऑन the person availability and all, they should conduct such a sessions. So I like to thanks to the case Ved sir and Ved sir and their staff. Uh, so right now I just like to hand over this to Mr. Ved so that he can get into it. Okay. Thank you, Ujjwal sir. I would request you to stop your screen share so that I can directly see you and on your camera. I know there is a electricity problem, but I want to make sure that my students see this. Even in this situation, you are taking a live webinar. Still, in such situation where electricity got dumped and you immediately to Yes. switch to different solution, you didn't panic. So this is also a thing which we learned during this online session, and I was taking some points. कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मराठी सर क्या आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं? Sure. हाँ, थैंक यू। if possible you can on your camera. if light नहीं है then you can, it's okay. Light नहीं है, sorry. एंड जैसे मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी मराठी मीडियम हिंदी मीडियम से हैं, एंड उन्होंने भी काफी सारे उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग इतने इंग्लिश नहीं बोल पाते, ये नहीं कर पाते, सब प्रॉब्लम्स हैं। तो राइट, आपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला एंड नाउ हियर यू आर, एंड बेबाकी Yes. तरीके से आपने अपने फेलियर्स भी बच्चों के सामने रखे। इसलिए रखे कि फेलियर्स को हम जब एनालाइज करते हैं, मैंने वो लिखा आपका एक मंत्र है, कीप ट्राइंग, फाइंड सॉल्यूशंस, सेल्फ एनालिसिस एंड मूव अप द लैडर, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ और मुझे रिवीजन मिल गया मेरे आइडियोलॉजी का। तो काफी अच्छा लगा, मैं वो सारे पॉइंट्स लिख रहा था कि लेस गाइडेंस था आपको, आप एक वर्नाकुलर मीडियम से बिलोंग करते थे, तो कॉलेज लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस फेस किया आपने, लेकिन आप उस चैलेंजेस में आप आगे जाके जब आप फेल भी हुए तो आपने हार नहीं मानी, and then you did some self analysis, and 22% of entire Mumbai University का रिजल्ट लगने में आप 41 लाए और आपने अपने आप को एनालाइज किया कि चलो मैं सरवाइव तो हो गया। देन आफ्टर सर्वाइवल यू मूव टू विन, मतलब अभी सक्सेस की तरफ आगे। तो आपने अपने लैडर्स को सही तरीके से प्लेस किया, which was a very learning thing for me as well. So अब मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ अगर क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहते हैं तो they can have a question answer sessions with you. Sir, can we have question answers with you? Yes, sure.
Students, you can post your questions in the chat section and we'll like to read it out. So please make sure that you're posting your questions in the chat section. हमारे यस स्मिथ चैट सेक्शन में मैसेज करिए योर डाउट, जो भी आप पूछना चाहते हैं. हमारे स्टाफ में से भी किसी को कुछ पूछना है. श्याम इज अ क्यूरियस वन. श्याम, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? इसका काफी इंटरेस्ट था, वो काफी सारे टर्म्स बोल रहा था. हेलो श्याम. Yes, please, Sham. आप unmute होके भी पूछ सकते हैं. चलो, I'll allow you to unmute because I saw you very active in the chat section. Even I saw some Satyam and 10th standard students, Madhura as well. She was active in the chat section. That was great to see. Yes, Sham, आप पूछ सकते हैं. Sham, you're not audible. Yeah, hello sir. Audible, I think you can hear put you. the question on chat. Hello, Ujjwal sir. Good evening sir. Yes, I'm there. Good evening. सर मैं जानना चाहता था, आपने इंजीनियरिंग के थ्रू सिक्योरिटी के फील्ड में, पर एक कोई फील्ड है जो मतलब सिर्फ इस पे कोर्स है, मतलब मेन स्ट्रीम कोर्स है जो इसी पे फोकस करता है, सिर्फ मतलब डिग्री भी इसी में हो, ऐसा? ऐसा है, तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने ऐसा कुछ स्ट्रीम पहले तो इंफ्रा सेट करके चल गया था, राइट. बट सिक्योरिटी में ऑप्शन मिला मुझे, दैट ओके, जो मुझे करना ही था और मिल गया, और मैंने उस पर बल्ला घुमा दिया. तुम्हारे केस में अगर तुम्हें पहले से ही सिक्योरिटी में जाना है तो अपने यहाँ भारत में यूनिवर्सिटी है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है, ओके, जो गुजरात में है. हेलो, am I audible? हेलो. Yes, you're audible. ओके, सो वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि आपको पहले से ही सिक्योरिटी के लिए बनाएगी. वहाँ पे आप मतलब आई थिंक 2 या 4 साल का कोर्स रहता है. आफ्टर बी रहता है या बिफोर बी, सॉरी आफ्टर 12th, दैट आई हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, बट वहां से आप कर सकते हो. आपको वहां पे सिक्योरिटी सिर्फ इंफॉर्मेशन का ही नहीं, बल्कि जो पता है आप सीआईडी सीरियल में देखते हो, राइट. वो लोग किसी ना किसी चीज से भी उनका डेटा निकाल लेते हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह से भी डेटा निकाल लेते हैं, बालों में से डेटा, राइट, मेडिकल फॉरेंसिक डेटा वगैरह वो भी निकाल लेते हैं, राइट. सो वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको वैसा सिक्योरिटी इनबिल्ट जो प्रोग्राम है वहाँ वो करा के देगा, मतलब आपको सिक्योरिटी वाली की डिग्री मिलेगी. सो उसमें अगर मुझे आपको सजेस्ट करना है तो, अगर लेस ईयर्स वगैरह में कंप्लीट करना है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर इट. अगर थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ जाना है एंड विद द नॉलेज ऑफ आईटी, तो आई वुड रिकमेंड बेटर यू गो आफ्टर द ग्रेजुएशन or while doing your job, if it provides you can say parallel जो simultaneous distance education है, वो learning है तो. Hello. Yes sir. Thank you sir. Hope it is clear. Yes sir. And basically one more thing एक मैं कहूँगा तुम्हें, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ना तो यू स्टार्ट लर्निंग नाउ itself. उसके लिए कोई एज नहीं है, बट हाँ, बी श्योर 12th पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, जो भी है तुम्हारा जो करंट एजुकेशन है उस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए. दिस शुड बी योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ओके. Yes sir. Thank you very much sir. Okay, nice question, Sham. It was quite an interesting one, and yeah, with that depth, में already सोच रहे हो. That's a good sign that you're learning many things. And Ujjwal sir, there is one question from our faculty. Faculty पूछना चाहते हैं question. Dipali ma'am, you can ask. Hello. हाँ, Yes. good afternoon, sir. Ujjwal sir. Good evening. हाँ, good evening, sir. Actually, just I want to ask कि अब क्लास में हम normally daily life में भी लैपटॉप में जैसे हम एंटीवायरस वगैरह बोलते हैं, एंटीवायरस एंड पासवर्ड के अलावा भी और कौन सी चीजें हैं
इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? जरूर दे सकते हो। आपके लैपटॉप में लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज जो रहती है, ओके, ओके। so you can enable that. You can enable audit options in it even if you get some, मतलब है ना, कोई पासवर्ड आपका क्रैक करना चाहता है, राइट, राइट। तो किस टाइम पे किया था उसके लॉग्स आप देख सकते हो, राइट। ओके। आप अगर कहते हो कि ये पर्टिकुलर यूजर बंदा है, आपने बोला है कि इस लैपटॉप पे 5 जन लॉगिन करेंगे, तो 5 ही जन उन 5 यूजर्स में से ही लॉगिन करेगा, और कोई दूसरे ने आईडी डाला तो इट वोंट एक्सेप्ट। एज वेल एज आप अगर कहते हो कि उसने सिर्फ है ना 50 GB का ही डिस्क स्पेस यूज करना चाहिए है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो कोटा मैनेजमेंट एंड अदर सिक्योरिटी कंट्रोल्स से। बहुत सारे कंट्रोल रहते हैं। इनफैक्ट ये भी रहता है कि अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, राइट, ये मेजर टास्क रहता है, क्योंकि है ना कोई भी सॉफ्टवेयर आजकल ऐसा है कि आपके पास भले अगर कुछ चीज ना हो, आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, तो उसके ओपन सोर्स टूल भी अवेलेबल है एंड कॉट्स प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो वो इंस्टॉल करके उस पर्टिकुलर डिवाइस की इंफॉर्मेशन यूं ही मिल जाती है। सो यू कैन डिसेबल दैट थिंग आल्सो। ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। Okay, it was nice to see that हमारे केमिस्ट्री टीचर को भी IT रिलेटेड डाउट है. That was great to see. सर एक युक्ता करके हमारी स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड की, वन ऑफ आवर ब्राइट स्टूडेंट. शी इज आस्किंग दैट कि इंक्रीजिंग नेटवर्किंग के वजह से नेचर पे कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चन बाय हर साइड कि कुकीज क्या होता है, DNS क्या होता है. तो मैं कहूंगा कि पहला आंसर करिए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम टू आवर क्लासेस टू टेक अ स्मॉल सेशन to our students so that ये बहुत सारी चीजें सीख पाए आपसे. Because ये जो terms पूछ रहे हैं अभी, they are also asking काली लिनक्स क्या होता है, पैरट और बंटू क्या होता है, या लिनक्स मशीन क्या है. So I think आपको एक लेक्चर लेना पड़ेगा. Now they are really excited to learn and get into the depth. तो एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा जो आप अभी एड्रेस करिए कि नेटवर्किंग जो बढ़ रहा है उससे नेचर पे अफेक्ट पड़ रहा है, तो कोई सोल्यूशन है या व्हाट्स योर से ऑन दिस? ये क्वेश्चन है, लोकल लेवल पे इतना काम नहीं करेगा, बट हाँ, इंक्रीजिंग नेटवर्किंग सो रैपिडली, आई मीन उसका इफेक्ट ऑन अ नेचर। अभी मैं कहूँगा यार, ये लोग तो झाड़ वगैरह काट के डेटा सेंटर खड़ा कर देते हैं, राइट, तो नेचर को तो थोड़ा है ही, राइट, बट साइमल्टेनियसली ऐसा भी है, इफ सपोज वो लोग ये सब चीजें ध्यान में रख के भी अगर ठीक से स्पेस लेते हैं, जैसे कि कोई एनए जगह है और उस एनए जगह पे ये लोग बिल्टअप कर रहे हैं, सो इट डोंट हैव एनी हार्म टू द नेचर, ओके, एज वेल एज जो इससे कोई स्मोक वगैरह भी नहीं आता है ना, जो ऐसे कोई क्या कहेंगे हम लोग उसको, गैसेस वगैरह रिलीज करेगा जिससे प्रॉब्लम वगैरह होगी, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा ये ह्यूमन बीइंग को जरूर अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आज आप है ना हम लोग की तरह छुट्टियां नहीं मनाते, आपके हाथ में मोबाइल है, आप दोस्तों के घर पे भी जाओगे ना तो आप आपके मोबाइल पे रहोगे, आप फ्रेंड्स के साथ नहीं रहोगे, आप उसको वर्चुअली कनेक्टेड रहोगे ओवर द पीजी या तो जो भी GTA गेम रहेगा, सो इट विल इम्पैक्ट यू, ओके, इफ यू आर गेटिंग हेवीली एडिक्टेड टू इट, ओके। तो इसलिए मैं कहूंगा भाई हेल्थ ये पहला सिक्योरिटी है, यू नो वी हैव टू सेव बोथ वेल्थ एंड हेल्थ, मतलब पैसा एंड अपनी जान भी। सो आई विल से कि बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट नेचर पे इम्पैक्ट होना वगैरह बहुत ही लेस होगा, ओके, वेदर एज इट विल फॉलो द गो ग्रीन अप्रोच। Yes, so there are two sides of a coin. बहुत ब्रिलियंटली आपने कहा कि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी हमारे हेल्थ को देना चाहिए, देन एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली. एंड उज्जवल सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आई नो कि आप बिजी हो, आपको नेटवर्किंग में अभी कॉल्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली एंड यू वांट टू बी एड्रेसिंग योर टीम राइट नाउ. सो लेकिन मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगा सबकी तरफ से, और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पहले भी कई जगहों पे एक सेशन किया था कि बच्चों के लिए हमने थोड़ा हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड एक कोर्स कराया था, शॉर्ट एक कुछ आवर्स का, या फिर थोड़ा सा एक लेक्चर जो आपके अंदर का एक टीचर है वो ये बच्चों को मिल जाएगा कुछ आवर्स के लिए, तो दे विल बी रियली हैप्पी विद दैट.
तो आई वुड रिक्वेस्ट यू आफ्टर लॉकडाउन आप प्लीज विजिट करिए, आपका थोड़ा टाइम दीजिए कि बच्चों को ना आप ये रियल आईटी वर्ल्ड और सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में और डिटेल में बता सके और ये बच्चे आपसे 1-to-1 लाइव इंटरेक्ट कर सके physically. Sure, Ved. Obviously, we'll plan for the same. Okay, according to availability of both. Okay, here as per the questions, I like to say one thing. As I said, I don't lie. So here I also don't want to lie. So जैसे कि एक सवाल है, can you explain term cookies? कुकीज के लिए मैं लाई वाला जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है, उससे भी नेक्स्ट वाले कुकीज ये है कि भाई आप जो भी लॉग इन करते हो ना, उसकी की एक पूरी स्ट्रिंग रहती है। मानो आपके ब्राउजर में वो एक ऐसा सेशन रहता है कि जिससे आप है ना उस पर्टिकुलर रिमोट सर्वर से जुड़े हुए रहते हो और उस पर्टिकुलर एक चीज से ना आपका ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन बना हुआ रहता है। आज जो भी अपन लोग सभी जूम से कनेक्टेड है ना, वो उसी की बदौलत है। अब आपके और हमारे सिस्टम में जूम की एक कुकीज ही रन हो रही है, समझ लो, जिसकी वजह से वो कनेक्ट करने को चांस दे रहा है। वरना अगर कोई भी अगर चाहे कि बीच में आ जाए, इट वोंट कम। बट हाँ, ऐसे भी रहता है। बीच में जूम के ही बारे में ऐसी एक वल्नरेबिलिटी आई थी, बट इट वाज फॉर द आई थिंक वन ऑफ बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम। ओके, एंड उस मीटिंग में एक इंट्रूडर आ गया था, बीच में ही कोई बंदा आ गया एंड उसने जंप इन कर लिया एंड उसका वीडियो चालू कर दिया and he played something song or something. Okay, so ऐसा होता है. So due to the vulnerabilities of digital world, people can get into it. So वो सब अगर आपको रोकना है तो security must be there. This kind of a cookies and other relevant things should be blocked or protected from outside world. ऐसा. Then next है also DNS. DNS जैसे मैंने कहा कि domain name system, जो आप जो yahoo.com डाल रहे हो उसको एक नंबर में कन्वर्ट करना, एंड अगर आप नंबर डालते हो तो नंबर को नाम में कन्वर्ट करना। जैसे कि yahoo.com अगर किसी नंबर 1 2 3 को कन्वर्ट कर रहा है तो 1 2 3 मतलब ही याहू है, ये कंफर्म कराना काम डीएनएस का है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। ऐसा। Then here is that question, that Linux वगैरह वाला. Guys, here I want to say I'm not a Linux engineer, but yes, Kali Linux is the platform where you can do hands-on for your security. Okay, security के world में मैं जरूर उतरा हूँ, but I was in the infra kind of security where Linux was not much essential to me and on that devices. Okay, जो मेरा administration का काम था, that was not on the Linux. But yes, if you want to script that device, develop some understanding or intelligence behind that device or on that device, you need a Linux or a scripting approach or a self-scripting approach where you can build the things for it. Okay, so Linux के लिए मैं भी नया हूँ, I am the beginner and right now I'm doing the same. Okay. Sir, what is DCIM, Data Center Infra Management? It is same, buddy. You have to manage whole infra, that कि क्या और किस तरह से काम करना है. Yes, correct, Nitik. Binary numbers. So, डेटा सेंटर को किस तरह से मैनेज करना है. अभी डेटा सेंटर आपने देखा वो कितना खूबसूरत दिखता है, राइट? उसके कनेक्शंस कैसे है, उसका लुक कैसा है, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, राइट? तो उसको मैनेज करना, उसका टेम्परेचर मैनेज करना, उसकी कनेक्टिविटी मैनेज करना, उसके सर्वर्स को चेक करना, उसकी हर सर्वर की या डिवाइसेस की ब्लिंक कंप्लीट करना, उसके हर डिवाइस का इसका लॉग्स कैप्चर हो रहा है या नहीं, रीचेबल है या नहीं, एवरीथिंग यू हैव टू डू. I mean, जो भी प्रोएक्टिव बेसिस पे कर सकते हो, it comes under the DCI. How much? Yes, Nmap if they want. Sham, yes, Nmap अगर सामने वाले डिवाइस पे कुछ भी डिटेल्स अगर तुम्हें निकालनी है, तो Nmap and Zenmap is the tool by which you can gain the details of that device. Suppose जैसे कि हम लोग भी हमारे यहाँ पे अभी कुछ भी मेल आ जाते हैं आपको, सपोज कहीं से भी, तो अगर मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर मेल कहाँ से आया, या सपोज किसी yahoo.com को चेक करना है कि उसके यार डिटेल्स क्या है, वो लोग कौन सा सिस्टम वगैरह यूज कर रहे हैं, क्या मैं देख पा रहा हूँ. अगर कुछ वल्नरेबिलिटी रही
तो मुझे उनके डिवाइसेस की डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि वो लोग विंडोज सर्वर यूज कर रहे हैं, वो लोग लाइनक्स सर्वर यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे डिटेल्स मिल जाएगा, जिसके थ्रू अगर मुझे वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आई कैन गेट इन टू इट। ये ऐसा रहता है दैट कम्स इनटू द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपको ये सब चीजें बताता है, सो यू कैन go and dig dive into it as per your capabilities. Nikit, yes, it is binary numbers are also yahoo.com. Yes, Nikit, yahoo.com की जो query तुम करोगे ना, it will convert to the binary numbers only. But आपको उसको डेसिमल में भी जानना है तो you can get the details. Okay, you can simply go to your command prompt and type ping yahoo.com. You will get the things. You have to write like this. You will come to know what servers are there. Okay, I mean their front servers. The location of Okay, Ujjwal sir. yes. I think that you must be this session is going too long and students are over excited, and I'm really happy to see that my students are so much into this thing. So आपने जो टाइम दिया था एक्चुअली वो एक्सीड हो चुका है और आप उसके बावजूद भी बच्चों के क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे हो। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं ऑनर्ड हूँ कि आप अपना टाइम एक्सटेंड करके बच्चों को क्लियर कर रहे हो डाउट्स। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन बच्चों के बिहाफ पे कि प्लीज विजिट चंद्रा एकेडमी सून, एंड ये बच्चों को जरा फिजिकली अब मिलके एक कंप्यूटर सारा ओपन करके, हमने आपके लिए एक सीपीयू रखा हुआ है अभी भी हमारे ऑफिस में, ताकि आप बच्चों को पूरा डिसमेंटल करके हर एक चीज बता सके। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम डाउन टू चंद्रा एकेडमी आफ्टर द लॉकडाउन इज ओवर एंड द एनवायरनमेंट इज लिटिल सेफ। Sure. Students, I would like to, yes, Madhura is also saying, please. I'm really sorry, students, but he has promised us that he will be visiting our premises. उन्होंने जो टाइम दिया था वो एक्सटेंड हो गया था, एंड आई डोंट वांट कि हमारे वजह से उनका कोई लॉस हो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने हमें इतना गाइड किया है, रादर देन हमें लर्निंग या बाय हार्टिंग करना है, हमें अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस रखना है, फिर उनके चैलेंजेस, एंड देन छोटा मोटा जॉब, फैमिली प्रेशर ड्यू टू फ्रेंड्स गेटिंग गुड जॉब, यानी रियल लाइफ जो उन्होंने सिचुएशन फेस किए, उसके वजह से उन्होंने जो अपनी कहानी बताई कि हर एक चीज उन्होंने फेस किया एज ए स्टूडेंट। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सारी चीजें फेस करेंगे, एंड लेकिन उसका सोल्यूशन आपको मिल चुका है। एक एग्जांपल आपके सामने है कि अगर आप फाइट करते रहोगे और अपने चीजों को रीइनोवेट करोगे, चीजों को वापस सोचोगे, सॉल्यूशन पे सोचोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। सो ऑन दिस नोट मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा उज्जवल सर कि आपने इस सेमिनार को ठीक वहीं से पिक किया जहां पे लास्ट सेमिनार खत्म हुआ, और जो बच्चों ने सवाल पूछे थे उस सवाल के जवाब आपने यहाँ पे देकर उनको और डेप्थ में लेके आए। एंड बिफोर आई एम थैंकिंग यू, देयर आर थैंक यू pouring in the chat section by the students, for like it's raining thank you in the chat section. So students, I'm very happy that you participate. Chandra Academy के सारे team members का मैं thank you बोलना चाहूंगा। उज्जवल sir, you are invited again and again. You are a part of our academy. Please guide us and mentor our students as well. Sure, Ved sir. As well as I like to say all the best finally to all the students, okay, of a case. As well as एक message भी देना चाहूँगा, guys. Though technology and study is important, more than that, your health is more important. ओके सो आप जो भी सपोज अभी डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो भी मस्ती भी कर रहे होंगे ना, तो आई विल से कि डू इट फॉर योर एंटरटेनमेंट ओनली, एंड आपके हेल्थ की तरफ सबसे पहले ध्यान देना। ओके और उससे आपको जो भी मिल रहा होगा करंटली, इवन इफ यू आर सपोज यू नो टिकटॉक वगैरह यूज कर रहे लोग, दे आर डूइंग फॉर देयर एंटरटेनमेंट, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम कमा देते हैं। कुछ लोग उस पर पैसा भी कमा रहे हैं, but you know money can make happy, it can't bring you a happiness. Okay, so ये याद रखना बस, and never lie, never say back, I will say, but yes, look back to know your faults and learn well and go ahead.
Okay, wish you all the best once again, and thank you to the case that they are introducing the experts from various fields to provide a guidance on the various subjects or objects. Thank you Thank so you. much, sir. Surely, we Asians will follow what you have advised us, and our students will be really happy to see you again at our Chandra Academy. As I can see their uh, messages in the chat section. On this note, I would thank you once again on behalf of the team of Chandra Academy of Science and Engineering and all the Asians that you enlightened us. We are more hungry now for your knowledge. Please share your knowledge in the upcoming months when everything is settled. We would like to know many things from you, sir. Thank you. Yeah, thank you and welcome. Okay. I'm Thank you, disconnecting. everybody. Thank, Thank you, Chandra Academy. On this thank note, you, I end everybody. this second episode of our webinar by Mr. Ujjwal Patel, sir. And at last, again, thanking him. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you, students, for maintaining a quite healthy atmosphere. Thank you. Thank you, Thank you. sir. Thank you. Okay.